कहाँ से आना हुआ आपका? दुबई से। रहने वाले कहाँ के हो? दुबई से ही रहते हो? दुबई में रहते हो? हाँ। मतलब इंडिया में कहाँ से गए थे? केरला से गए। कितने साल हो गए? दुबई 20 ईयर्स। अच्छा, ठीक है। तो अभी कितनी एज है आपकी? 47। बच्चे? 3। अच्छा, और शादी को कितने साल हो गए? 19। अब क्या दिक्कत है आपको? I have premature death. PME? Very early. From the time I know I'm having it. शुरू से ही आपको ये प्रॉब्लम है? Yeah. अच्छा, So, but I've been balancing it, somehow managing it. Kids are born, so things happen. So then I think 10 or 12 years back, I started using that sprays. Okay. When I started using sprays, it was fine. But then I was really finding it very uncomfortable and all. Then one day after applying, I noticed that it became white inside. Then I told the doctor, he said it became vitiligo. Okay. So that literally, so that maybe the vitiligo was in me. With this, it came out, and then suddenly from there, vitiligo started appearing, but it's very much under control. उसके लिए मेडिसिन ली आपने? Yeah. I consulted allopathy first. क्या ऐसा हो सकता है कि विटिलिगो होना ही था? ये कोइंसिडेंस है? Yeah. ऐसा पॉसिबल है? Yeah, correct. This is the trigger. This is the trigger for that, and then over there it's been stable. It's inside, not even outside. It's inside the foreskin. And then after that, then from then onwards, I've been trying to fix vitiligo. So then after that, I started having it came here. Then I started having an Ayurvedic medicine, and it healed. It arrested the progress, and कोई एलोपैथी भी ले रहे थे आप? Allopathy, I tried 50-60% improvement was there, but not fully. But with Ayurveda, I got 100%. So taking those medicines on regular basis. But then lifestyle, we have stress, and I have my own advertising firm there. अच्छा. So advertising is something which is based on the market moment. Now we have war going on there. So everything is down. So again, it's small started appearing. I take medicine again, it's under control. Okay. So then for this PE, then I thought, okay, I contacted your staff, I think 1 year back. Yeah, but then that's when all these issues started coming up, and I thought I'll come here and the dorsal neurotomy. So I just need to have an idea what is that, how is the operation, and what do you need with fillers, is that required or ओके. तो बेसिकली बात ये है आपकी कि आप विटिलिगो आपको हुआ. विटिलिगो बेसिकली जिसमें स्किन वाइट हो जाती है सारी, और आपने उसको कंट्रोल किया एलोपैथी और आयुर्वेद से मिलके, और अब आपको पिछले शादी के बाद से यानी 19 साल से PME की प्रॉब्लम है, शुरू से ही है. तो अब आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, जो कि आप डोर्सोनोरेक्टमी और फिलर. ओके. तो अभी आपका जो पेनिस है उसका फ्रंट एरिया अंदर वो वाइट है, अंदर की तरफ वाइट हो गया. ठीक है. और तो वहाँ पे क्या सेंसेशन है आपको ग्लैंड्स पेनिस में? नहीं, सेंसेशन इन द सेंस कि हाइपर सेंसिटिव है वो बहुत ज़्यादा है. So previously I noticed that when I used to pull the foreskin back, it used to be very tight. And over time it became loose. Over time it became. But now it's still sensitive. The upper gland area. आपका क्या नाम है? नाम क्या आपका? अच्छा, ठीक है. तो जिसमें ये इसलिए जा रहा था कि भाई मुस्लिम तो नहीं है आप, कि भाई सर्कमसिजन होता है ना उसमें, तो ठीक है. तो हम सर्कमसिजन के लिए ओपन है? नहीं. अच्छा, ठीक. तो हम फिर डोर्सोनोरेक्टमी करेंगे और साथ में फिलर भी देंगे. दोनों चीज़ क्यों कर रहे हैं? दोनों चीज़ इसलिए कर रहे हैं कि जैसे डोर्सोनोरेक्टमी हम करते हैं तो मतलब इनका सुपर एडिटिव इफेक्ट है. दोनों साथ करेंगे तो इफेक्ट ज़्यादा आता है. और कोई भी सर्जरी करने से, जैसे जो भी हम डोर्सोनोरेक्टमी करेंगे या फिलर करेंगे, उसका असर काफ़ी धीरे धीरे इंक्रीज होता है. सेंसेशन चली जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, लेकिन टाइमिंग में धीरे धीरे असर आएगा. तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप फिलर करें.
नहीं, एक ही बार सिंगल टाइम, Oh, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम फिलर करें, लेकिन ऐसी स्टडी है जिसमें इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप उसके लिए ओपन नहीं है तो हम डोर्सोनरेक्टमी भी कर सकते I'm open to what you हैं। तो मेरी सजेशन है कि हम डोर्सोनरेक्टमी करते हैं और साथ में 2 फिलर ग्लैंड पेनिस में डाल देते हैं, ठीक है। और सेफ है, सर्जरी कुछ नहीं है इसमें। आपको थोड़े दिन तक बस ये है कि सेक्स नहीं करना, 1-1.5 महीने तक। जो टाके लगेंगे घुल जाएंगे, वो सब है और सेफ है। जो भी नर्व्स होगी निकाल देंगे, पेनफुल नहीं होगा बिल्कुल। जब नर्व्स कट करेंगे तो थोड़ा सा पता लगता है, वो हम बता देंगे, 1 सेकंड का पता लगता है, अदरवाइज कोई पेन नहीं होता और करा के जा सकते हैं, तो सेंसेशन कम हो जाएगी। And how long is this surgery procedure? हाफ एन आवर। Half an hour. And the sedations and all. नहीं, कुछ नहीं, लोकल एनेस्थीसिया में कोई सेडेशन वगैरह कुछ नहीं देंगे। लोकल एनेस्थीसिया में वहीं पे जहाँ पे इंसिजन देंगे वहीं पे एनेस्थेटाइज कर देंगे। See one of the videos that you say you count the number of nerves. हाँ, जो नर्व्स निकलेगी वो हम आपको दिखा देंगे। So how do you define how many? हाउ मैनी, ये देखिए कि भाई कितनी नर्व्स निकालेंगे, ये हम जैसे करते रहते हैं। तो जितनी एक्चुअली क्या है, एक्चुअल में तो 2 नर्व्स होती है, लेकिन हम इसको सिलेक्टिव डोर्सोनरेक्टमी इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसकी सारी नर्व को नहीं काटेंगे। अगर सारी नर्व को काटेंगे तो पूरा पेनिस की सेंसेशन चली जाएगी। तो उसको हम ग्लैंड पेनिस से पहले काटते हैं। तो वहाँ पे नंबर ऑफ नर्व्स जो होती है वो किसी पेशेंट में 5, किसी में 6, किसी में 7 ऐसे होती है, डिपेंडिंग ऑन कितनी ब्रांचेज हुई है। तो हम उसमें थोड़ी सी मैग्नीफिकेशन देख के हमें पता लग जाता है कि भाई ये नर्व्स है, उनको काटते रहते हैं। कुछ नर्व्स के अलावा हम कुछ रैंडम फेशिया भी काट देते हैं। फेशिया इन द सेंस, फेशिया को क्या बताऊँ मैं आपको, फेशिया बेसिकली एक तरह का जैसे कागज़ होता है ना, पेपर लाइक होता है, और वो बेसिकली थोड़ा सा होल्ड करके रखते हैं सारे टिश्यू को। तो थोड़ा उसको भी इसलिए कट करते हैं, उसके अंदर बहुत माइन्यूट नर्व्स होती है जो दिखती नहीं है। तो इस तरह से सेंसेशन सारी कम हो जाएगी, करके आप फौरन घर जा सकते हैं, अपने काम पे जा सकते हैं। Return flight is tomorrow. हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है, तो आज भी जा सकते हो आप, कुछ नहीं Yeah, I didn't know that. I just thought to be on the safe side. है। हाँ, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। And so fillers, you mean there are different type of fillers or there? देखिए फिलर्स एक ही तरह के यूज होते हैं, हाइलोरेनिक एसिड फिलर होते हैं, लेकिन एक होता है बॉडी फिलर, उसकी क्वालिटी थोड़ी नीचे की तरफ होती है। और दूसरा होता है कि जो नॉर्मल हम फेस पे फिलर यूज करते हैं, वो प्री फिल्ड सिरिंजेस में आता है, मतलब ऑलरेडी सिरिंजेस में भर के आता है। बॉडी फिलर बॉटल में आता है। तो बॉडी फिलर बेसिकली यूज करते थे ब्रेस्ट वगैरह में, अब पेनिस में भी यूज करते हैं। तो वो नहीं यूज करेंगे हम, जो फेस फिलर है वो यूज करेंगे, वो सुपीरियर क्वालिटी होता है। The purpose of the filler is थोड़ी सेंसेशन को और नम करना। हाँ, and does that sensation reduce over time or like do you have to come on? नहीं, आपकी अभी हो जाएगी, साथ के साथ हो जाएगी। Together when you do it, it's like हाँ। lifelong then. हाँ, लाइफ लॉन्ग है, ठीक है, दोबारा ग्रो नहीं करेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि ना उसको बर्न कर देंगे, ठीक है। तो सेफ सर्जरी है, कुछ भी इसमें आपका नुकसान नहीं है, और ठीक है, करके जा सकते हो सीधा। बैंडेज करेंगे, परसों बैंडेज खोल लेना, उसको धो लेना, जो जख्म होगा उसको आप धो सकते हो, उसको ऐसे कुछ करने की जरूरत Do I need to take an antibiotics? नहीं। हाँ, 5 डेज, Maybe एंटीबायोटिक 5 डेज, ठीक है। and any food diet or nothing. नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ एंटीबायोटिक करना है। एक बैंडेज होगी, उसको आप उतार देंगे, उसके बाद परसों उस बैंडेज को उतार के साबुन पानी से धोना शुरू कर देंगे। जो टाके होंगे वो अपने आप डिजोल्व हो जाएंगे, अब कुछ नहीं करना, हमारे पास फॉलो अप के लिए नहीं आना। And the healing period, how long will it be? 10 डेज, 10 days. लेकिन सेट करना 1 महीने, Yeah. ठीक है ना। Yeah, 1 month. No.